My dear student, today we have studied about the separating methods of mixture. A mixture which consists of solid and liquid both. There are several mixtures in our surrounding which are found in nature also, consist of solid and liquid. How can we separate them? In a mixture which consist of with the solid and liquid, the solid plus water, both are present there. It is separated by the process of evaporation. Guys, you know that evaporation is a process in which water converted to water vapor at any temperature, and you can say any liquid converted to vapor state at any temperature. And for example, you can suppose that a mixture which consists of solid and liquid, there are liquid part present and solid part present, but we cannot separate easily. We heat it. First process is to it has to heat it up, and when we heat it, the liquid parts evaporate. After some time, when the liquid parts are finished, then some residue of solid particles are present, and we can separate easily. हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं. And the process of evaporation. As we know that in our history, Dandi March, which is done by Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था. आपको इतिहास में पता होगा. दांडी मार्च इज डन बाय मिस्टर महात्मा गांधी टू फॉर्म द सॉल्ट. उसमें नमक बनाया था उन्होंने. इसको हिंदी में नमक का आंदोलन भी कहते हैं. इट इज नोन एज द सॉल्ट मूवमेंट. वहाँ पे we are knowing about this fact. The marine water consists of salt, and salt can be separated by the process of evaporation. उन्होंने छोटी छोटी क्यारियां बनाई थी और इन क्यारियों में मैराइन वाटर आया था. और मैराइन वाटर का इवोपरेट हुआ. जितना भी ज़्यादा सरफेस होता है इवोपरेशन उतनी अधिक होती है. और बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन he made the salt, and this movement is known as salt movement of it is done by Mahatma Gandhi against the English Empire. अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसे दांडी मार्च कहते हैं. इस सिंपल सा प्रोसेस है कि हम इवोपोरेशन जानते हैं. इवोपोरेशन में सॉलिड लिक्विड दोनों मिले हुए हैं. आपके घर में भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है. वाटर पार्टिकल्स जो लिक्विड पार्टिकल्स से उड़ जाते हैं, रेसिड्यू बच जाते हैं, उसको आप सेपरेट कर लेते हैं. इस प्रकार बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन यू कैन सेपरेट a solid from liquid. As I hope that you are understood. Once again I tell you, evaporation is a process in which solid liquid can be separated by the process of normal heating. And heating करने के बाद the liquid is going on in the air. The residue के रूप में solid particle बच जाता है. और यह process दांडी मार्च में हमारे महात्मा गांधी ने किया था. समुद्र के किनारे गए थे, गुजरात के तट पर उन्होंने यह काम किया था. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, डिस्टिलेशन प्रोसेस. डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है in which liquid or water vaporized possible.
There are two processes consist of in this relation. One is evaporation, second is condensation. Two processes are working here. Evaporation first, when we heat any liquid or water, the water convert into water. अगर आप इस प्रोसेस को देखिए तो इस प्रोसेस में लिक्विड या वाटर को आप पहले वेपराइज करें. फर्स्ट यू हैव टू वेपराइज. वेपराइज करने का मतलब है कि यू कैन हीट इट. जब इसको आप हीटिंग करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर and it will be condensed. The second process is condensation. First process is evaporation, second process is condensation. अब दूसरा प्रोसेस जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने हीट किया किसी चीज को, तो हीट करेंगे तो वेपर बनेगा. और वेपर यहाँ पे प्रोसेस है कि आप कंडेंस करें. कंडेंस करने के बाद ये जो एयर जाएगा और वेपर जाएगा, कंडेंस होने के बाद फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट. इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. अरे कंडेंसेशन यहाँ पे है, सॉरी, डिस्टिलेशन कहते हैं. डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द वाटर और लिक्विड वेपराइज फर्स्ट, देन इट इज कंडेंस्ड. आपको मैंने कंडेंसेशन पढ़ाया है. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच a vapor convert into liquid. This is a physical process. Evaporation is also physical process. Condensation is also physical process. आप स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों में. एक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. गैस को फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस को आप चेंज कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं. कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड. So this process, first process is evaporation, second process is condensation, then you find the distilled liquid or distilled water. Mineral water contain a lot of minerals in them. Mineral water को मान लीजिए कि आपने मिनरल वाटर को हीट किया. सपोज आपने किसको हीट किया बेटा? मिनरल वाटर को हीट किया. मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स मिले रहते हैं. आपने जब हीट किया तो केवल वाटर का पार्ट ही ऊपर जाएगा. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं मिनरल्स के रूप में वो नहीं जाते हैं, वो इवोपरेट नहीं होंगे. तो केवल क्या गया? वाटर गया, कंडेंस हुआ, वाटर वेपर. आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर. मिनरल वाटर को आपने हीट किया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर वेपर जो कन्वर्ट हुआ वो H2O के फॉर्म में. मिनरल वाटर H2O के फॉर्म में होता है, जो बहुत सारे आयरन और भी जो कैल्शियम ये सब की सब्सटेंसेस में मिले रहते हैं. जब आपने कंडेंस किया तो आपको प्योर फॉर्म में डिस्टिल वाटर आपको मिलता है, इसको H2O कहते हैं. दिस इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. ये पीने के लिए उपयोगी नहीं होगा. डिस्टिल वाटर अगर आप बना रहे हैं तो वो पीने के लिए उपयोग नहीं है. कि यू कैन गेट द प्योर फॉर्म ऑफ H2O आफ्टर डिस्टिलेशन. मेरे कहने का मतलब है कि डिस्टिलेशन से आप किसी भी लिक्विड में लिक्विड ही मिलता है, जैसे केवल लिक्विड होती है, उसमें उस लिक्विड का आप अलग प्योर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड कैन बी फॉर्म आफ्टर वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इन प्योर फॉर्म. If you have any problem, you can ask me on the WhatsApp, and I today only describe about the evaporation distillation. So this is the process you have to understand. Distillation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस आते हैं. वन इज इवेपोरेशन एंड आपके सामने सेकंड इज कंडेंसेशन. तो आफ्टर आपसे कोई पूछे कि आप मिनरल वाटर को इवेपोरेट क्यों करेंगे? मिनरल वाटर को हम इवेपोरेट इसलिए करते हैं वी कैन गेट द डिस्टिल्ड वाटर व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, बट डिस्टिल्ड वाटर इज ऑलवेज यूजफुल फॉर केमिकल रिएक्शंस. A lot of chemical reactions are formed by the using of distilled water, not mineral water. मिनरल वाटर से आप रिएक्शन करा दें किसी केमिकल का तो हाईली एक्सप्लोसिव हो जाएगा. डिस्टिल्ड वाटर से
बहुत सारे सालों से बहुत सारे मेडिसिन्स बनाए गए हैं और बहुत सारे लैब के काम डिस्टिल वाटर से होते हैं। इस प्रकार आप मिनरल्स वाटर को भी इवोपोरेट करके डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगला पॉइंट आपको नेक्स्ट टुमारो बताऊंगा। टुमारो आई विल टेल यू अबाउट द सब्लिमेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज को सेंट्रीफ्यूग किया गया है, मंथन किया गया है। आपने हमारे धर्म में भी पढ़ा होगा, यू कैन लर्न इन आवर धर्म आल्सो। समुद्र मंथन was done by our devils and डोमेन्स आल्सो। हमारे डिवोटी लोग ने भी किया था और डोमेन्स लोग ने भी किया था। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और वही मेथड हम अपने घर में भी अपनाते हैं। किसी एक चीज को डालकर उसको घुमाते हैं। आपके घर में भी पहले आपके घर में दही का वो करके ऊपर वाला लेकर सारी क्या बनाया जाता था, घी बनाया। वही प्रोसेस करना है साइंस में भी, सेंट्रीफ्यूग करना है। सेंट्रीफ्यूग मीन्स मंथना। समुद्र मंथन में पहाड़ को ले आकर वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया गया था, उसी प्रकार ये भी मंथन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसको कल पढ़ेंगे। सब्लिमेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिस्टिलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको आगे वाले क्लास में बताया जाएगा। इफ यू एनी डाउट्स इन डिस्टिलेशन एंड इवोपोरेशन प्रोसेस, you can ask me. Thanks to all of you.